خوش آمدید listeners. Today I'm going to start episode number 6 of اے دل ہے مشکل از قلم پریشا. اور ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں. یوشا نیچے گئی تو سعدیہ بیگم وہاں نہیں تھی. وہ شاید روم میں آرام کرنے چلی گئی تھی. نینا اور مرحا ہال میں بیٹھی ہوئی تھی، گپے مار رہی تھی. تاج کچن میں کھانا بنا رہی تھی. کیا باتیں ہو رہی ہیں لڑکیوں؟ یوشا کہتی ہوئی ان کے ساتھ بیٹھی. ہماری چھوڑو، تم بتاؤ، ہو گئی بات؟ نینا اس کی طرف مڑی. ہاں ہو گئی. یوشا مسکرا کے بولی تھی. زیادہ لمبی نہیں ہو گئی تمہاری بات؟ مرحا بھی بولی. میری تو ہو گئی، تم بتاؤ مس نین، یہ کیا تم نے عجیب سی شرطیں رکھی ہیں؟ یوشا نے گھورا تھا. ہاں، اور یہ پارلر والی کیا شرط ہے؟ تم ہمارے بھائی سے یہ کام کرواؤ گی؟ مرحا نے مصنوعی غصے سے دیکھا تھا. ہاں بالکل، اس کو کرنا چاہیے. میں بہت کفایت شار بیوی بننا چاہتی ہوں. روز روز پارلر کا خرچہ نہیں کر سکتی، لیکن تیار تو مجھے روز ہی ہونا پڑے گا نا، تو بس پھر میں صرف اس کے پیسے بچا رہی ہوں. نینا گردن اکڑا کے بولی. اچھا مذاق چھوڑو، ایک سیریس بات بتاؤ. یوشا سنجیدہ ہوئی. کیا؟ نینا بھی سیریس ہوئی تھی. مراد تمہیں کیسا لگتا ہے؟ آئی مین ایز اے لائف پارٹنر. وہ تم سے پیار بھی کرتا ہے؟ یوشا نے اس کے ایکسپریشن دیکھے. اچھا انسان ہے مراد. میں نے تو بس ایسے ہی یہ شرطیں رکھ دی تھی. تم دونوں کو پتا ہے میں نے کوئی آئیڈیل نہیں بنایا. میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس طرح کی شرطیں رکھوں. وہ تو بس میں اسے چیک کر رہی تھی کہ وہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے. نینا نے کہتے ان کی شکل دیکھی. اچھا اتنے دن اس بیچارے کو خوار کر کے ہو گیا چیک؟ مرحا اس کو گور کے بولی. اب مجھے کیا پتا تھا وہ سچ میں شرطیں پوری کرنے ہی لگ جائے گا. نینا خسیانی ہوئی تھی. اچھا، اور جو باقی کا شوشہ چھوڑا ہے وہ؟ اب یوشا نے بھی گھورا تھا. وہ تو کرنا پڑے گا، وہ نہیں میں نے چھوڑنا. نینا تیزی سے بولی تھی. ہاں دیکھ لیں گے. یوشا نے سر جھٹکا تھا. نینا کی اپنی الگ ہی منطق تھی. پتا نہیں کیا شوق چڑھا تھا اس کو بلیک پہننے کا. سین چینج. تاج کچن میں جلدی جلدی سب کام نپٹا رہی تھی. کچھ ہی دیر میں سب کھانا کھانے آنے والے تھے. احتشام باہر سے سیدھا کچن میں آیا. اس کو پتا تھا آج کل اس کی بیوی کچن میں ہی ملتی تھی. اس کو کھانا بنانے کا بہت شوق تھا، بس کھانے کا نہیں تھا. احتشام نے دروازے میں رک کر تاج کو دیکھا، جو ریڈ شرٹ اور کیپری میں بال آدھے باندھے کھڑی کام میں مصروف تھی. احتشام دبے پاؤں گیا اور کمر سے پکڑ کر اپنے حصار میں لے لیا اور بالوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتاری. کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے. تاج دبے دبے غصے سے بولی تھی. وہ احتشام سے ناراض تھی. اس کو کتنی بار بولا تھا کہ ہاسپٹل لے جائے، ایک بار، لیکن وہ نہ مانا تھا. مجھے پتا چلا میری بیوی ناراض ہے مجھ سے. اب کیا گناہ ہو گیا ہے مجھ معصوم سے؟ احتشام نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا. آپ کو کیا؟ آپ نے کون سا کبھی میری بات مانی ہے؟ ہمیشہ اپنی ہی کرتے ہیں. تاج منہ پھلا کے بولی تھی. اگر ناراض ہو تو میں منانے کو تیار ہوں. احتشام مسکرایا. نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، آپ پیچھے ہوں. تاج نے اس کو پیچھے کرنا چاہا. ان 2 ہفتوں میں اس کے منانے کا طریقہ اچھی طرح جان چکی تھی. ہاں ہاں، ڈرتی کیوں ہو پیاری بیوی؟ احتشام زور سے ہنسا تھا. احتشام پیچھے ہوں، یہ کچن ہے، آپ کا روم نہیں ہے، کوئی آ جائے گا. تاج ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بولی تھی. ہاں تو روم میں چلتے ہیں. احتشام آنکھ دبا کے بولا تھا. تاج نے سٹ پٹا کے یہاں وہاں دیکھا تھا. سوری سوری، میں نے کچھ نہیں دیکھا. نینا کی آواز پر تاج اچھل کے دور ہوئی تھی. کیا ہوا نینا، کچھ چاہیے؟ تاج نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے پوچھا. ہاں، وہ کھانا بن گیا؟ نینا مسکراہٹ چھپاتی ہوئی بولی تھی. بس بن گیا ہے، لاتی ہوں. تاج جلدی سے بولی تھی. ٹھیک ہے، یو کیری آن. نینا شرارت سے کہتی بھاگ گئی تھی. اب آپ شرافت سے یہاں سے چلے جائیں. تاج غصے سے بولی تھی. اوکے، جا رہا ہوں، فی الحال رات کو پوچھوں گا تم سے. احتشام اس کا گال کھینچتا ہوا جلدی سے باہر چلا گیا. تاج مسکرا کے رہ گئی. اس گھر میں اس کو آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، لیکن یہ سب ایسے گھل مل گئے تھے اس سے کہ جیسے سالوں سے جانتے ہوں. تاج بھی پچھلی سب بری یادیں بھلا کے اپنی اس زندگی کی طرف دھیان دے رہی تھی. سین چینج. شایان نے آج صبح مسز ملک سے بات کی تھی کہ وہ ابھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن مسز ملک نے پوری بات سننے کی بجائے اس کی طبیعت صاف کر دی تھی. ان کا کہنا تھا کہ جب تم لڑکی پسند کر چکے ہو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے ان کو ڈیٹ بھی دے دی ہے شادی کی. اب تمہیں یاد آیا ہے بات کرنے کا؟ وہ تو بہت زیادہ غصے میں تھی. ایک تو اتنی مشکل سے راضی ہوا تھا، اب پھر اس کو مسئلہ ہو رہا ہے. شایان بھی تو ان کو اصل بات نہیں بتا رہا تھا، تو ان کو اس کی بے وجہ ضد پہ غصہ آ رہا تھا. انہوں نے شایان کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی، جس کی وجہ سے شایان کا غصہ سوا نیزے پر چڑھا ہوا تھا. اس کا موڈ انتہا درجے کا خراب تھا.
आज जो भी इससे बात कर रहा था इसको ही काट खाने को दौड़ रहा था। आज सुबह जब मरहा को देखा तो दिल तो बस बाहर आने को तैयार था। मरहा भी आज रेड हिजाब में मामूल से हटके खूबसूरत लग रही थी। शान ने बहुत मुश्किल से अपने दिल को कंट्रोल किया हुआ था, वरना दिल तो आज सारी हद बांधिया तोड़ने को तैयार था। इस सारे मामले में और तो कुछ न हुआ, बस शान के गुस्से का ग्राफ बढ़ गया था, जो बस फटने को तैयार था। कुछ दिनों में मरहा की भी फीलिंग्स बदल रही थी। इसको भी शान अच्छा लगने लगा था। इसका बात करना, थोड़ी सी फिक्र करना मरहा को अच्छा लग रहा था। अब तो शयान बात भी नर्म लहजे में करता था, पहले की तरह रूड भी नहीं होता था। आज वो जितना मरहा को इग्नोर करना चाह रहा था, मरहा इतना ही इसके सामने आ रही थी। शयान इस सब से परेशान हो चुका था। आज तो इसने अपनी ड्यूटी भी दूसरे डॉक्टर्स को दे दी थी। वो अपने ऑफिस में सर हाथों पे गिराए बैठा हुआ था जब अचानक मरहा बगैर नोक किए रूम में दाखिल हुई। सर, वो मरहा ने मुंह खोला ही था कि शयान चिल्ला के बोला था, जब मैंने एक बार कह दिया है कि आज मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं तो आपको समझ नहीं आ रही है एक बार? लेकिन सर मेरी, मरहा ने कुछ कहने की कोशिश की। क्या सर? हाँ, मैं बता चुका हूं कि काम नहीं करना आज, तो क्यों बार बार आ जाती हैं आप? कुछ दिन आपसे नरमी से बात क्या कर ली, आप सर पे चढ़ रही हैं। जा यहाँ से, और खबरदार अब सामने आई तो मेरे। शयान गुर्राया था। सारा गुस्सा मरहा पे निकल गया था। मरहा ने आंखों में आंसू लिए इसको देखा, फिर फाइल जोर से टेबल पे मारी। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसे इंसान के मुंह लगने का। डॉक्टर फारूक ने फाइल पे आपके साइन लेने का कहा था। ये है फाइल, साइन करके खुद ही दे दीजिएगा, और आज के बाद आपको मेरी शक्ल नजर नहीं आएगी। मरहा रोती हुई वहां से भाग गई। आज तक किसी ने इससे ऐसे बात नहीं की थी। क्या मुसीबत है। शान ने हाथ मार के सब कुछ नीचे गिरा दिया। उफ, या अल्लाह, ये क्या किया है मैंने। शान सर पकड़ के बैठ गया था। सीन चेंज। मुराद आज हाफ ऑफ लेकर शहर के मशहूर पार्लर के सामने खड़ा था। वो नैना से वादा कर चुका था कि जरूर शर्त पूरी करेगा, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कभी पार्लर की तरफ जाता, कभी वापस आ जाता, लेकिन अंदर न जाता। या अल्लाह, मदद कर। शादी से पहले मेरा ये हाल है, शादी के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मुराद आसमान की तरफ देखकर बोला था। थोड़ा सा चला, फिर रुक गया। उफ, अब मेरे ये दिन आ गए हैं कि हार्ट स्पेशलिस्ट होके मेकअप करूंगा। वाह मुराद, क्या लड़की ढूंढी है। मुराद को अपनी हालत पे अफसोस हुआ था। आखिर हिम्मत करके पार्लर के अंदर चला ही गया। अब देखते हैं क्या होता है। सीन चेंज। यूशा आज हॉस्पिटल नहीं आई थी। इसने ताज और इब्तिशाम से मिलने जाना था, जो आज इस्लामाबाद जा रहे थे। नैना अकेली ही ड्यूटी कर रही थी दोनों की। नैना अभी रूम में ही आई थी कि मरहा रोती हुई अंदर आई और इसके गले लग गई। गुलाबो, मेरी जान, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? नैना परेशान हुई। वो मरहा से कुछ बोला ही नहीं गया। वो हिचकियों से रो रही थी। क्या हुआ है मेरी जान, किसी ने कुछ कहा है? मुझे घर जाना है, प्लीज घर चलो। अच्छा अच्छा रुको, मैं अभी फारूक अंकल से पूछ के आई। मरहा बहुत कम रोती थी, कजा कि वो इतनी बुरी तरह से रोए। नैना सच में बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। डॉक्टर फारूक से पूछ के नैना इसको फ्लैट पे ले गई थी। यूशा को भी बुला लिया था। मरहा मुसलसल रोए जा रही थी। नैना का दिल कर रहा था जिसकी वजह से मरहा रो रही है इसको गोली मार दे। जैसे ही यूशा आई, मरहा इसके गले लग के जोर जोर से रोती थी। इन दोनों की तो जान पे बन आई थी। क्या हो गया है मेरी गुलाबो, क्यों रो रही हो? यूशा ने पूछा, लेकिन वो रोती रही। यूशा ने भी इसको दिल हल्का करने दिया था। जब चुप हुई तो सब कुछ इन दोनों को बता दिया। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, समझता क्या है खुद को, बदतमीज इंसान। नैना गुस्से से खोल रही थी। वो इसकी आंखों में मरहा के लिए पसंदीदगी देख चुकी थी, पर ये रवैया, मुझे लगता है वो इस शादी से खुश नहीं है, इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा है। मरहा सर झुका के बोली, लेकिन ये रिश्ता इनकी मर्जी से हुआ है। मैंने मुराद से भी पूछा था। यूशा बोली थी। फिर इसने किस चीज का गुस्सा निकाला है इस पर? इसको जरा सी भी तमीज नहीं है किसी लड़की से बात करने की। मरहा कोई मुलाजिम नहीं है इसकी जो वो यूं चिल्लाएगा। नैना का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। अब ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, यूशा बोली थी। क्या तुम अब भी शादी करना चाहती हो? एक बार सोच लो, पूरी जिंदगी का सवाल है। नैना ने पूछा। हाँ, अब तो सब कुछ फाइनल हो चुका है, मैं पीछे नहीं हट सकती, मरहा बोली थी। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी हो।
हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो तुम हमें बताओगी, वादा करो। यूशा ने हाथ आगे किया था। वादा। मरहा ने हाथ थाम लिया था। तुम हमसे कुछ नहीं छुपाओगी। अगर इसने दोबारा ऐसा कुछ किया तो फिर मैं नहीं बख्शूंगी इसको, नैना ने धमकी दी थी। मरहा अपनी दोस्तों की इतनी फिक्र पर मुस्कुराती। सच कहा है किसी ने, दोस्त अल्लाह की तरफ से नेमत होता है। दोस्ती एक खुद पैदा करदा रिश्ता है। इंसान अपने खून के रिश्ते खुद नहीं चुन सकता, लेकिन दोस्ती अल्लाह की तरफ से ऐसा तोहफा है जो इंसान अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में शामिल करता है। अच्छा दोस्त वही होता है जो जिंदगी के हर लम्हे में, आपके हर फैसले में आपके साथ खड़ा रहे। इंसान अपनी जिंदगी की जंग खुद लड़ता है, कोई किसी के हिस्से की नहीं लड़ता। लेकिन जब आपके साथ कोई खड़ा हो और आपका हौसला बढ़ा रहा हो तो लड़ना आसान हो जाता है। जरूरी नहीं है कि खून के रिश्ते ही सब कुछ हों। कभी कभार इंसान को ऐसे रिश्ते की भी जरूरत पड़ जाती है जिससे सिर्फ दिल का ताल्लुक हो, जो दिल की बात बिना कहे समझ जाए। दुनिया में हजार रिश्ते बनाओ, लेकिन एक ऐसा बनाओ कि जब हजार आपके खिलाफ हों तो वो एक आपके साथ हो। सीन चेंज। तुम दोनों के जाने से मेरे घर की रौनक चली जाएगी। सादिया बेगम अपने बहू बेटे के जाने से उदास थी। तो क्या हुआ है मोम, आप अपनी दूसरी बहू घर ले आए, रौनक भी आ जाएगी। शहराम यूशा को देख कर बोला, जो ताज से पता नहीं कौन से राज व न्याज कर रही थी। आज शहराम को नीचे हॉल में लेके आ गए थे, वो भी इसकी जिद पे, क्योंकि 2 दिन से रूम में बैठकर वो बोर हो चुका था। क्या जल्दी है तुम्हें, हो जाएगी शादी, पहले चलना तो सीख लो, अब तो शाम ने चढ़ाया था। तुम तो चुप ही रहो, खुद तो कर ली है ना। शहराम घूर के बोला था। इब्तिशाम बुरा सा मुंह बना के रह गया। बेगम यहाँ भी देख लें, शोहर बिस्तर पर पड़ा है और आपको दूसरों की फिक्र हो रही है। शहराम से अपनी इग्नोरेंस बर्दाश्त न हुई तो सबके सामने बोला था। यूशा जो ताज और इब्तिशाम को ख्याल रखने का कह रही थी गड़बड़ा गई। क्या हो गया है शहराम, क्यों तंग कर रहे हो बच्ची को। सादिया बेगम बोली थी। बस करे मोम, अपने बच्चों को छोड़ के बाकी सबकी फिक्र है आपको, मैं नजर नहीं आता, शादी करनी है मुझे बस। शहराम जिद्दी बच्चे की तरह बोला था। शादी करने का तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे टॉफी मांग रहे हो, जो मैं अभी लाके दूं, सब्र रखो, हो जाएगी। सादिया बेगम ने लताड़ा था। शहराम मुंह बना के कुछ बड़बड़ा के रह गया था। सब बाहर चले गए तो यूशा शहराम के पास आई थी। आपको जरा शर्म नहीं आती सबके सामने ऐसी बातें करते हुए। मैंने कौन सा आपसे रोमांस किया है सबके सामने जो शर्म आएगी। शहराम बेनियाजी से बोला था। आपसे तो बहस बेकार है। यूशा उठ के जाने लगी। कहाँ जा रही हैं, अभी तो मेरे साथ बैठी भी नहीं हैं आप। शहराम ने हाथ पकड़ के रोका। मुझे शॉपिंग पे जाना है, मरहा की शादी में सिर्फ 1 हफ्ता रहता है। यूशा ने हाथ छुड़ाया था। ठीक है, कर लें कुछ दिन ऐश, मरहा की शादी के फौरा बाद हमारी शादी होगी। शहराम ने फैसला सुनाया। लेकिन इतनी जल्दी, यूशा को फिक्र हुई थी। कोई तैयारी की नहीं थी और यहाँ ये शादी की डेट तय किए बैठा है। हाँ जी, इतनी जल्दी, बस अब मैं और कुछ नहीं सुन रहा हूँ, मैं मजीद वेट नहीं कर सकता। शहराम संजीदगी से बोला था। लेकिन अभी तो आपकी चोट भी ठीक नहीं हुई। यूशा को फिक्र हुई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बस मेरे पास आने की तैयारी करें। शहराम मुस्कुरा के बोला था। लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, यूशा बोली थी। कौन सी बात। हमारा निकाह दोबारा होगा। यूशा मुस्कुरा के बोली। जो आपका हुक्म प्यारी बेगम, बस आप तैयार हो जाएं। शहराम ने इसका हाथ लबों से लगा के छोड़ दिया। यूशा मुस्कुराती हुई चली गई। सीन चेंज। अगले दिन मरहा सुबह ही शान के ऑफिस चली गई थी। डॉक्टर मरहा, मैं आपको ही बुलाने वाला था, आए। शयान संजीदा सा बोला था। जी क्यों। मरहा को हैरानी हुई थी। कल के लिए माजरत, मैं कल गुस्से में पता नहीं आपको क्या क्या बोल गया। शयान शर्मिंदा था। कोई बात नहीं सर, मरहा ने कहते एक लेटर आगे बढ़ाया। ये क्या है। शयान ने पकड़ के खोला था। मेरा रिजिग्नेशन है सर। मरहा बगैर किसी तासुरात के बोली थी। लेकिन क्यों, अगर कल की वजह से है तो मैं माजरत करता हूँ इसके लिए। शयान परेशान सा बोला था। मेरी शादी हो रही है। मरहा ने इसके मुंह से अल्फाज छीन लिए। शान को लगा जैसे किसी ने सीसा कान में उंडेल दिया हो। वो तो आज अपनी शादी से मना करके सबको ये बताना चाहता था कि इसने मरहा से शादी करनी है, लेकिन वो तो किसी और के नाम होने वाली है। शान को ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। मरहा तो अपनी बात कह के चली गई, लेकिन शयान को जलजलों की जद में छोड़ गई। शयान का दिल कर रहा था सारी दुनिया को आग लगा दे। पहले तो इसने किसी लड़की के बारे में सोचा नहीं था,
अब जब कोई अच्छी लगी तो वो भी किसी और की हो रही है, ये सोच ही इसको पागल कर रही थी। हॉस्पिटल का सारा काम दूसरे डॉक्टर को देकर खुद सड़कों पे बेमकसद ही फिरता रहा था। काफी देर से घर आया तो मिसेस मलिक का नया फरमान सुन के बिलबिलाया था। मॉम, मैं शादी कर रहा हूँ, ये काफी नहीं है क्या? शयान की आंखें जब्त से सुर्ख हो गई थी। हमेशा से तैयार रहने वाला शयान बिखरा हुआ सा लग रहा था। क्या हो गया है शयान? शादी सिर्फ एक ही बार होती है, हर लड़की के 100 अरमान होते हैं, और कुछ न सही कम से कम तुम शॉपिंग तो करवा सकते हो। मिसेस मलिक को इसकी समझ नहीं आ रही थी कि चाहता क्या है। पहले खुद ही शादी के लिए हाँ की, अब ऐसे कर रहा है जैसे किसी और की शादी हो। प्लीज मॉम, ये जनाना काम मुझसे नहीं होते हैं, आप खुद ही अपनी बहू को शॉपिंग करवा लें। शान कहता बगैर इनका जवाब सुने चला गया। पीछे मिसेस मलिक अरे अरे करती ही रह गईं। ये इंसान भी समझ से बाहर था। शान ने रूम में जाते ही कोट उठा के बेड पे मारा था। एक ही तो दुआ मांगी थी आपसे कि इसको मेरा कर दें, लेकिन आपने इसको किसी और के नाम कर दिया। शान अपने रब से ही शिकवा कर बैठा था। मैंने तो सच्चे दिल से चाहा है इसे, लेकिन क्यों मेरे नसीब में नहीं है वो। शान ने उठ के नमाज पढ़ी और दुआ मांगी। बेशक अल्लाह अपने बंदों की सुनता है। दुआ मांग कर शान पुरसुकून हो गया था। जो अल्लाह की जात पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह इनको मायूस नहीं करता। बेशक वो हर चीज पर कादिर है। सीन चेंज। क्या हो गया शहराम, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? आप ठीक तो है ना? यूशा रूम में आती फिक्रमंदी से बोली थी। सादिया बेगम और जैदी साहब कहीं गए हुए थे। शहराम घर पर अकेला था। अब इसकी हालत पहले से बेहतर थी, बस अभी बाजू में दर्द था और सर की चोट ठीक नहीं हुई थी। कमर का जख्म अब ठीक था तो वो चल फिर लेता था। इसीलिए सादिया बेगम चली गई, वरना कभी इसको अकेला छोड़ के नहीं जाती थी। नहीं, शहराम के चेहरे पे दर्द नजर आ रहा था। क्या हुआ शहराम, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? आपको ज्यादा दर्द हो रहा है? यूशा इसकी तकलीफ देखकर रोने वाली हो गई। नहीं, डॉक्टर को नहीं बुलाना, बस आप यहाँ आए। शहराम ने हाथ बढ़ा के इसे पास बुलाया था। क्या बाजू में बहुत दर्द हो रहा है? यूशा ने बाजू पे हाथ लगाते हुए पूछा। शहराम ने सर हाँ में हिला दिया, वरना यूशा के इतनी मासूमियत से पूछने पर उसे हंसी आ रही थी। शहराम कराया था। अब ठीक हुआ दर्द या और डोज की जरूरत है? यूशा ने जोर से इसके जख्मी बाजू पे मारा था। ये क्या था? मुझे दर्द हो रहा है। शहराम ने सदमे से इसे देखा था। बस करे शहराम, मैं सब समझ रही हूँ आपका नाटक। यूशा मसनूई खफकी से बोली थी। आपको मेरा दर्द नाटक लग रहा है? शहराम ने इसको देखा। जी बिल्कुल, यूशा ने घूरा था। क्यों बुलाया है मुझे? खुद तो आपको याद नहीं आता है कि आपका एक अदद शोहर भी है जो जख्मी है। मुझे ही बुलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना? शहराम बेचारगी से बोला था। यूशा 2 दिन बाद आज आई थी, वो भी बुलाने पे। शहराम, आपको पता तो है परसों मरहा की मायू है, फिर शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, इसीलिए थोड़ा मसरूफ थी, लेकिन आप भी हद करते हैं, डरा दिया है मुझे। ऐसे भी कोई बुलाता है क्या? वो खफा हुई। तो सीधे तरीके से कौन सा आपने आ जाना था? आपको बस अपनी दोस्तों की पड़ी है, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं। शहराम मुंह लटका के बोला था। क्या हो गया है आपको? आप मेरी दोस्तों से जेलस हो रहे हैं? यूशा हंसी थी, सारी खफकी दूर हुई। हाँ तो आप भी तो सारा दिन इनके साथ ही रहती हैं, मेरे साथ कभी इतना टाइम गुजारा है? शहराम खफा था। अच्छा ना, अब तो शादी हो रही है मरहा की, फिर तो वो चली जाएगी, इसीलिए मैं इसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। यूशा समझाने वाले अंदाज में बोली। और मैं किसी खाते में नहीं आता? शहराम को अपनी ही पड़ी थी। शहराम बस भी कर दें, शादी होके आपके पास ही आना है मैंने। यूशा जल्दी में क्या बोल गई थी समझ आया तो सर झुका गई। शहराम हंस पड़ा। बड़ी जल्दी है मेरे पास आने की? शहराम ने छेड़ा। मैंने कब कहा? यूशा ने नजरें उठा के देखा था। शहराम सब्ज नैन कटोरों की चमक देख कर रह गया था। होठों पे उल्फत का नाम होता है, आंखों में छलकता जाम होता है। तलवारों की वहां औकात क्या होगी, आंखों से जहां कत्लेआम होता है। शहराम इसकी आंखों को लबों से छू के बोला। यूशा की पलकें बोझल हुई, रुखसार तब गए थे। जल्दी से उठने की कोशिश की। कहाँ जा रही हैं? शहराम ने हाथ पकड़ लिया था। शहराम प्लीज छोड़ दें। यूशा मिनमिनाई थी। इसकी इतनी कुर्बत पे ही यूशा की जान निकल जाती थी, और अगर ना छोड़ूं तो? शहराम ने आईब्रो उचकाया था। प्लीज शहराम, यूशा ने इल्तिजा की। अच्छा ठीक है, यहाँ बैठे मेरी बात सुने। शहराम ने मजीद तंग करने का इरादा तर्क करते हुए फिर से इसे अपने साथ बैठाया था।
क्या? यूशा ने सवालिया नजरों से इसे देखा। मैं नाना को आज कह दूंगा शादी की डेट का। मरहा की शादी के 3 दिन बाद हमारी शादी के फंक्शन शुरू होंगे, शहराम ने संजीदगी से कहा। और अगर वो ना माने तो? यूशा बोली थी। वो मेरा काम है, बस आप तैयार कर लें खुद को, बाकी सब मैं देख लूंगा, शहराम ने बताया था। और आपकी चोट तो अभी ठीक नहीं है, जब आप पास आएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैं अब मजीद वेट नहीं कर सकता। शहराम इसका हाथ थामता हुआ जिद्दी अंदाज में बोला। क्यों नहीं कर सकते? बहुत ही बेतुका सवाल किया था। शहराम ने आगे से ऐसी नजरों से देखा कि वो सुर्ख होती सर झुका गई। इस वक्त शहराम की आंखों में अलग ही जहां आबाद था। यूशा जितनी भी कॉन्फिडेंट सही, शहराम की कुर्बत से घबरा जाती थी। शहराम की आंखों की चमक ही इसको बता देती थी कि वो इसके लिए कितनी अहम है। अब मैं जाऊं? यूशा ने इतनी मासूमियत से पूछा कि शहराम का दिल बेकाबू हुआ था। शहराम ने नजरें चुरा के सर हिला दिया, वरना आज कोई गुस्ताखी हो जानी थी। सीन चेंज। नैना और मुराद के घर वाले भी एक दूसरे से मिल चुके थे और रिश्ता भी फाइनल हो गया था, लेकिन फिलहाल मंगनी और शादी का कोई सीन नहीं था। मुराद ने तो बहुत शोर मचाया था कि इसको शादी करनी है, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। नैना ने कहा कि 2 साल से पहले वो शादी नहीं करना चाहती। मुराद बेचारा बोल बोल के खुद ही चुप हो गया। सीन चेंज। मरहा की शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। कल इसकी मायू थी, इसीलिए आज सारी शॉपिंग वगैरह पूरी की जा रही थी। आज मरहा ने मिसेस मलिक के साथ शादी का ड्रेस लेने जाना था। वो दोनों भी साथ तैयार हो गई थी। मिसेस मलिक इसको लेके कराची के सबसे बड़े मॉल में आई थी। मरहा इनकी इकलौती बहू थी, वो सब कुछ परफेक्ट चाहती थी। आंटी शायद सर नहीं आए, वैसे आना तो इनको चाहिए था। नैना की जबान में खुजली हुई। पूछना तो मरहा भी चाह रही थी, लेकिन हिम्मत न हुई। नहीं बेटा, इसको शॉपिंग करना पसंद नहीं है, अपनी भी बहुत कम करता है, मिसेस मलिक जबरदस्ती मुस्कुरा के बोली थी। इस वक्त शायान पे गुस्सा तो बहुत आया, जिसकी वजह से बच्चियों के सामने एम्बेरस होना पड़ा था। नैना ने समझ के सर हिलाया। इसके बाद सब अपनी अपनी शॉपिंग में बहुत मसरूफ हो गए थे। मरहा ने भी मिसेस मलिक की पसंद से शॉपिंग की थी। इस टाइम इसको बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ आ रही थी। शादी की खुशी भी थी, लेकिन शयान का रवैया परेशान कर रहा था। कुछ अपने घर को छोड़ के जाने का दुख भी हो रहा था। आज मरहा को मायू बैठना था, सिर्फ 2 दिन के लिए। यूशा तो मरहा की मम्मा मिसेस शाह के साथ गेस्ट को देख रही थी और नैना का काम सिर्फ मरहा को तंग करना था। वो तो ढोल की लेके बैठी गला फाड़ रही थी। मेरी प्यारी बहना बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजेगा बाजा। मरहा का कोई भाई नहीं था, इसकी सिर्फ 2 बहनें थी। बड़ी जो शादीशुदा थी, इसीलिए नैना का कहना था कि वो आज मरहा का भाई है, भाई की जिम्मेदारी वो पूरी करेगी। मेरी प्यारी बहना बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहना बनेगी दुल्हनिया। नैना का स्पीकर फटा हुआ था। बस कर दे नैना, ये देख ले मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। यूशा ने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। नैना की आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मरहा भी बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी। शुक्र है यूशा तुम आ गई, वरना मुझे लगा था आज मैं बहरी हो जाती। मरहा मुस्कुरा के बोली। सादे से पीले जोड़े में मेकअप से पाक चेहरा लिए मरहा अच्छी लग रही थी। आज हिजाब नहीं था, क्योंकि सिर्फ लेडीज का फंक्शन था। यूशा भी आज हिजाब के बगैर थी। बस तुम दोनों तो मेरे टैलेंट से जलती हो, इसीलिए मेरा गाना तुम दोनों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जाओ, मैं अब कुछ नहीं करती। नैना मुंह फुला के एक साइड पे हुई थी। नहीं नहीं, तो नाराज ना हो मेरी प्यारी दोस्त। मरहा ने इसको वापस बुलाया, जो बाहर जा रही थी। चिराग लेके भी ढूंढोगी तो मेरी जैसी दोस्त तुम दोनों को नहीं मिलेगी। बस तुम दोनों को मेरी कदर ही नहीं है। नैना ने ना नजर आने वाले आंसू साफ किए थे। मरहा की आंखों में सच में आंसू आ गए। यूशा ने जल्दी से आगे बढ़ के इसको अपने से लगाया था। नैना भी अब इनके साथ लगी। तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। 8 साल से एक साथ थी, अब जुदा होने का वक्त भी आ गया था। चलो बस करो, हम अपनी गुलाबों को खुशी खुशी रुखसत करेंगे। यूशा ने इनके आंसू साफ किए। हाँ बिल्कुल, एक ही गुलाबो है हमारी। सीन चेंज। लगाकर हाथ में मेहंदी सजाकर दिल की महफिल को दुआएं आम करते हैं, तुम्हारे नाम करते हैं। शायन ने उपटन लगाने से मना कर दिया था। वो तो रस्म में ही नहीं बैठना चाह रहा था, लेकिन मिसेस मलिक ने इसकी एक न सुनी। बाकी सब इसकी हालत से लुत्फ उठा रहे थे। प्लीज मॉम, मुझे नहीं लगाना ये। शान ने उपटन को देखकर बुरा सा मुंह बनाया था। तुम चुप करके बैठ जाओ,
तुम्हारी शादी एक ही बार होनी है, मैं सारी रस्में करना चाहती हूँ। मिसेस मलिक की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। एक ही बार होनी है और वो भी पसंद से नहीं हो रही। शान ने जलकर सोचा था, क्या बात है भाई, अभी से भाभी के ख्यालों में खो गए हो। मुराद इसको ख्यालों में गुम देख के बोला था, तुम तो चुप ही कर जाओ। शान का बात करने का कोई मूड न था। लो भला, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हम आपकी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं। जबरदस्ती ही हो रही है। शान बड़बड़ाया था। क्या कहा आपने? मुराद के कान इधर ही लगे थे। कुछ नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ। शान जबरदस्ती मुस्कुरा के बोला था। मिसेस मलिक ने रस्म शुरू की तो उपटन की स्मेल से शान ने बुरा सा मुंह बनाया। मोम, इसकी कितनी अजीब स्मेल है। कुछ नहीं होता है तुम्हें इसकी स्मेल से, अब चुप करके बैठ जाओ। मिसेस मलिक ने इसे डपटा था। टेप लगा दे मेरे मुंह को। शान का बस चलता तो उठकर भाग जाता। सबने हल्की हल्की उपटन हाथ और गालों पे लगाई थी। इस दौरान शान के मुंह के डिजाइन बिगड़ते ही रहे थे। भाई, आप माफ तो कर देंगे ना? मुराद की बारी आई थी। किस बात के लिए? शान को हैरत हुई, ये किस बात की माफी मांग रहा है? अभी जो मैं करने लगा हूं। मुराद ने कहते ही उपटन का पूरा बोल शान पे उलट दिया। कुछ देर तो शान को समझ न आई कि हुआ क्या। जब आई तो मुराद के पीछे भागा। मुराद के बच्चे, आज तुम बच जाओ मेरे हाथों से। शान पीछे से चिल्लाया था। मेरे बच्चे अभी दुनिया में नहीं आए। मुराद आगे भागता हुआ बोला था। बाकी सब लोग इनकी बचकाना हरकत पर हंस रहे थे। शान ने आखिर मुराद को पकड़ ही लिया। कहाँ भाग रहे हो? भाई की शादी है, गले नहीं मिलोगे? शान ने कहते हुए टाइट से हक किया तो सारी उपटन मुराद के कपड़े और चेहरों पर भी लग गई थी। भाई, मुराद पीछे होता चिल्लाया था। क्या भाई? हाँ, मेरे साथ पंगा लिया था ना, तो ये तो होना ही था। शान ने इसे फिर से साथ लगाया तो वो दोनों ही हंस पड़े। मिसेस मलिक और अनम बेगम, मुराद की मां, ने अपने बच्चों की नजर उतारी थी। इधर मरहा को वो दोनों घेरे बैठी थीं। दोनों ने सिंपल पीले सूट पहने थे। मरहा का सूट सादा ही था, लेकिन दुपट्टे पे हल्का सा गोटा था, जिससे वो अलग लग रही थी। देख गुलाबो, ये तेरी मायू है, तो उपटन सिर्फ तुझे ही लगेगी। खबरदार, जो तूने मुझे हाथ भी लगाया तो। नैना ने पहले ही वार्निंग दी थी। देखते हैं। मरहा ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। इतनी देर में यूशा उपटन का बोल लेके आई थी। फंक्शन घर में ही था, कोई भी मर्द नहीं था। हॉल को पीले फूलों से सजाया गया था। सबके बैठने के लिए नीचे ही निशिस्त बनाई गई थी। ढोलक की आवाज, लड़कियों की हंसी ने माहौल में जान डाल दी थी। मरहा की मम्मा ने रस्म शुरू की। फिर इसकी बहनों ने उपटन लगाई। यूशा और नैना सबसे एंड में आई। तू जानती है ना गुलाबो, शादी के दिन दुल्हन को सबसे अच्छा लगना चाहिए। नैना ने कहते हाथ उपटन के बोल में डाला और भर के निकाला। मरहा ने बात नजरअंदाज करके इसके हाथ को देखा, जिसने लम्हे में ही सारा हाथ इसके मुंह पे मल दिया था। मरहा का पूरा चेहरा उपटन से पीला हो गया था। यूशा, मैं कह रही हूं, अगर तूने इसको उपटन नहीं लगाया ना, तो मैंने रोना शुरू कर देना है। मरहा ने यूशा को देखा था। वो खुद उठ के लगा देती, लेकिन सामने मम्मा खड़ी हुई घूर रही थी कि उठ के दिखाओ यहां से। मरहा के कहने की देर थी, यूशा ने पूरा बोल नैना के सर पे उलट दिया। नैना तो हक्का बक्का देखती रह गई। अब तुम कहाँ जाओगी? नैना अपने हाथ में उपटन लेती यूशा की तरफ बढ़ी थी। दोनों ने हॉल में भागते वो उधम मचाया था कि हॉल का सत्यानाश हो गया था। किसी ने इनको कुछ नहीं कहा। सब जानते थे इनकी दोस्ती ऐसी ही थी। मरहा की मम्मा साइड पे हुई तो मरहा ने भी भरपूर अपना बदला लिया था। कुछ ही देर में वो तीनों पीली पीली हो गई थी। 2 दिन बाद मेहंदी का फंक्शन था। इन 2 दिनों में वो तीनों हर पल साथ रहीं। शहराम ने यूशा को बुलाया था, लेकिन वो इससे भी माजरत कर चुकी थी कि वो ये सारा वक्त मरहा के साथ गुजारना चाहती है। शादी के बाद फिर वक्त मिले ना मिले, इसीलिए वो ये पल अच्छे से जीना चाहती है। फिर शहराम ने भी ज्यादा फोर्स न किया। वो भी जानता था तीनों की जान बसती है एक दूसरे में। आज मरहा की मेहंदी और निकाह का फंक्शन था। गेस्ट ज्यादा थे तो हॉल बुक करवाया था। पहले निकाह होना था, इसीलिए सब इसकी तैयारी में लगे हुए थे। मरहा हल्के से काम वाले व्हाइट शरारा कुर्ती में सर पर रेड दुपट्टा लिए निकाह के लिए तैयार थी। नैना और यूशा भी पिंक और गोल्डन कलर की कैप्री शर्ट में तैयार थी। अब बस लड़के वालों का इंतजार हो रहा था। कुछ ही देर में लड़के वाले भी आ गए। शान अजीब सी कशमकश का शिकार था। बस जबरदस्ती की मुस्कुराहट लिए सबसे मिल रहा था। सामने नैना और यूशा को देखकर हैरान हुआ। ये यहाँ क्या कर रही हैं? अगर ये यहाँ हैं तो मरहा, क्या वो भी यही है?
یا اللہ، اتنی مشکل سے دل کو سنبھالا ہے، پھر اس کو سامنے لے آیا، کیا کروں میں؟ شایان صرف سوچ سکا تھا۔ ہیلو جیجو، کیسے ہیں آپ؟ شایان اسٹیج پہ بیٹھا تو نینا اور یوشا آئی تھی۔ جیجو ٹھیک ہیں، آپ سنائیں محترمہ؟ شایان کی جگہ مراد نے جواب دیا۔ ہم بھی ٹھیک ہیں، نینا نے بال جھٹک کے جواب دیا تھا۔ مراد اس کی بے نیازی دیکھتا رہا، جو اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی۔ شایان لفظ جیجو پہ اٹک گیا تھا۔ اس کا مطلب میری شادی مرحا سے ہو رہی ہے؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے مجھے بتایا تھا اس کی شادی کہیں اور ہو رہی ہے، پھر یہ مجھے جیجو کیوں کہہ رہی ہیں؟ اف، میں نے پاگل ہو جانا ہے۔ شایان جھنجلا گیا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ نینا اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی جو سوچ کے ساتھ بدل رہے تھے۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، مہندی پہ ملتے ہیں، تیار رہنا، نینا مراد کو دیکھ کر کہتی چلی گئی۔ یوشے کو شایان کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ شادی اس کی مرضی سے نہیں ہو رہی ہے۔ یا اللہ، میرا وہم سچ نہ ہو، پلیز، میری دوست کی پوری زندگی کا سوال ہے۔ یوشا نے دعا کی۔ نکاح کا وقت بھی ہو گیا۔ مولوی صاحب اور باقی سب بڑے اسٹیج پہ آ گئے۔ شایان ملک ولد فاروق ملک، آپ کا نکاح مرحا شاہ ولد احمد شاہ سے حق مہر 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ شایان نے نام سن کے سب کی طرف دیکھا۔ تو مطلب میری شادی مرحا سے ہو رہی ہے؟ شایان کو خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ بولو شایان، فاروق صاحب بولے تھے۔ شایان کے تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ بے اختیار دل نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ قبول ہے۔ مولوی صاحب نے پھر سے وہی کلمات دہرائے۔ شایان کے کانوں میں کسی نے رز کھول دیا تھا۔ بنا کسی دیر کے شایان نے 3 بار قبول ہے کہا اور سائن کر دیے۔ اس کے بعد مولوی صاحب مرحا کا اقرار سننے گئے تھے۔ مرحا شاہ ولد احمد شاہ، آپ کا نکاح شایان ملک ولد فاروق ملک سے حق مہر 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز سن کے مرحا نے یوشا کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا، جو پاس ہی بیٹھی تھی۔ بولو میری جان۔ یوشا نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ قبول ہے، مرحا کانپتی آواز میں بولی تھی۔ 3 بار قبول ہے بول کے مرحا نے اپنے جملہ حقوق شایان کے نام لکھ دیے اور سائن کیے۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد مرحا سب سے مل کے خوب روئی اور ساتھ ان کو بھی رلایا تھا۔ شایان کو اب تک یقین نہ آ رہا تھا کہ مرحا اس کی ہو گئی۔ اس کا دل تو بلیوں کی طرح اچھل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کے مرحا کے پاس پہنچ جائے۔ یہ 2 دن اس نے کس اذیت میں گزارے ہیں کوئی نہیں جانتا تھا، اور اب اس کا انعام مرحا کی صورت میں مل رہا تھا۔ گیسٹ کے لیے ڈنر لگا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد مہندی کا فنکشن شروع کرنا تھا۔ مرحا کو اب مہندی کے لحاظ سے تیار کیا گیا تھا۔ پیلے اور اورنج کلر کا لہنگا، پیلی چولی اور بھاری کام والا دوپٹہ لیے، ساتھ پھولوں کی جیولری پہنے وہ خود بھی پھول لگ رہی تھی۔ نینا اور یوشے بھی مہندی کلر کے فل گھیر والے فراک پہنے ہوئے تیار تھی۔ شایان اسٹیج پہ بیٹھا بے صبری سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کب مرحا آئے گی۔ کچھ ہی دیر میں مرحا آتی دکھائی دی، لیکن یہ کیا، چہرہ تو گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ شایان بدمزہ ہو گیا تھا، کتنے دن سے اس کو دیکھا نہیں تھا۔ مرحا اسٹیج کے پاس آئی تو شایان نے اٹھ کے ہاتھ آگے کیا، جسے مرحا نے تھام لیا۔ بیٹھتے ہی رسم شروع کر دی گئی تھی۔ اسے مرحا سے بات کرنی تھی، لیکن کوئی ان کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ نینا تو اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ شایان دل محسوس کے رہ گیا تھا۔ سین چینج۔ آج تو کوئی بہت ہینڈسم لگ رہا ہے۔ شایان جو کب سے یوشا کو ڈھونڈ رہا تھا آواز پہ پلٹا تھا۔ سامنے ہی یوشا چہرے پہ مسکان لیے اس کو دیکھ رہی تھی، جو بلو کلر کی شلوار قمیض میں ایک کاندھے پہ براؤن شال ڈالے، بال ماتھے پہ بکھرائے، خاصا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، آج تو آپ کی نظر اتارنی چاہیے، شہرام نے اس کو دیکھ کر بے ساختہ بولا تھا۔ آج وہ بھی ہلکا سا میک اپ کیے، ہاتھوں میں گجرے پہنے، سر پہ فروک کے ساتھ کا ہی حجاب لیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یوشا اس کے ایسے کہنے پر جھیپ سی گئی تھی۔ شہرام اس کے قریب آیا تو یوشا نے نظریں اٹھا کے اس کو دیکھا۔ یوں نہ دیکھیے ان قاتل نظروں سے، دل ہمارا پہلے ہی آپ پر قربان ہے۔ شہرام نے اس کی پلکوں کو انگلی سے چھوا۔ شہرام، یہ پبلک پلیس ہے، کچھ تو خیال کریں۔ یوشا ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بولی، گال لال ہو گئے تھے۔ آپ نے میرا خیال کیا؟ کیا ضرورت تھی اس قدر خوبصورت لگنے کی؟ اب میرا دل بے قابو ہو رہا ہے۔ شہرام نے کہتے ہی اس کو کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کیا تھا۔ شہرام چھوڑ دیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ یوشا نے اس کو پیچھے کرنا چاہا تھا۔ ہاں تو کس نے کہا تھا میرے سوئے ہوئے جذبات جگانے کو؟
شہرام کا لہجہ جذبات سے چور تھا۔ اس سے پہلے یوشا کچھ بولتی پیچھے سے آواز آئی، بندہ کسی دوسرے کا ہی خیال کر لیتا ہے، آپ تو سرے عام ہی شروع ہو گئے ہیں۔ مراد ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا تھا۔ یوشا اچھل کے دور ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ شہرام نے گھورا تھا۔ یوشا تو چھوٹتے ہی وہاں سے بھاگ گئی۔ شادی کروا دے میری، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، مراد معصوم سی شکل بنا کے بولا تھا۔ میں تمہیں قاضی نظر آتا ہوں جو تمہارا نکاح پڑھوا دوں؟ شہرام بگڑ کے بولا، سارے مون کا ستیہ ناش کر دیا تھا، آپ سفارش تو کر سکتے ہیں نا؟ مراد کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ نہیں کر رہا میں کوئی سفارش، جاؤ بھائی، تمہاری وجہ سے میری بیوی بھاگ گئی ہے، اتنی مشکل سے ہاتھ لگی تھی۔ شہرام دانت پیس کے بولا ہے، ٹھیک ہے جی، آج کل تو غریبوں کی کوئی سنتا ہی نہیں۔ مراد اپنے نہ نظر آنے والے آنسو صاف کرتا ہوا چلا گیا۔ نوٹنکی ہوں؟ شہرام نے سر جھٹکا تھا۔ کیسی ہو؟ نینا سائڈ پہ ہوئی تو شایان اس کی طرف جھک کے بولا، ٹھیک ہوں۔ مرحا نے لٹھ مار انداز میں جواب دیا، یہ اتنا بڑا پردہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ اب تو نکاح ہو گیا ہے۔ شایان ایسے بات کر رہا تھا جیسے ان کے پچھلے تعلقات بہت اچھے ہوں۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے اس سے؟ مرحا چڑھ کے بولی تھی، ابھی اس دن والی بات بھولی نہیں تھی، میں نے دیکھنا ہے تمہیں۔ شایان مسکرا کے بولا تھا، اچھا، آپ تو میری شکل دیکھنا نہیں چاہتے تھے، پھر اب یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ شایان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی یوشا اسٹیج پہ آ گئی۔ مرحا کے لہجے سے صاف پتا چل رہا تھا کہ وہ شایان سے اس دن والی بات پہ ناراض ہے۔ کوئی بات نہیں، کل تو میرے پاس ہی آنا ہے، میں منا لوں گا، شایان نے خود سے عہد کیا۔ میوزک کی آواز آئی تو سب اس طرف متوجہ ہوئے، جہاں ایک طرف مراد کھڑا تھا تو دوسری طرف نینا۔ مہندی لگا کے رکھنا، ڈولی سجا کے رکھنا، لینے تجھے او گوری آئیں گے تیرے سجنا، مراد کی طرف سے شروع ہوا تھا۔ صحرا سجا کے رکھنا، چہرہ چھپا کے رکھنا، یہ دل کی بات اپنے دل میں دبا کے رکھنا، نینا نے جواب دیا تو سب نے ہوٹنگ کی۔ اڑ اڑ کے تیری زلفیں کرتی ہیں کیا اشارے، دل تھام کے کھڑے ہیں عاشق سبھی کوارے، مراد اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈانس کر رہا تھا۔ چھپ جائیں ساری کڑیاں گھر میں شرم کے مارے، گاؤں میں آ گئے ہیں پاگل شہر کے سارے، نینا بھی کہاں پیچھے تھی کسی سے، میں ایک جوان لڑکا تو ایک حسین لڑکی، یہ دل مچل گیا تو میرا قصور کیا ہے، مراد نینا کے پاس آیا، رکھنا تھا دل پہ قابو، یہ حسن تو ہے جادو، جادو یہ چل گیا تو میرا قصور کیا ہے، نینا نے اپنے جلوے بکھیرے، مہندی لگا کے رکھنا، ڈولی سجا کے رکھنا، لینے تجھے او گوری آئیں گے تیرے سجنا۔ ڈانس ختم ہوا تھا، سب نے زور زور سے تالیاں بجائی، دونوں نے جھک کے داد وصول کی۔ کیا خیال ہے ہم بھی ڈانس کریں؟ شایان بولا تھا۔ آپ چپ ہو کے بیٹھیں گے یا میں اٹھ کے چلی جاؤں؟ مرحا سخت ناراض ہوئی تھی، اور پھر شایان بھی جب سے بیٹھا تھا جج ہی کیے جا رہا تھا۔ اوکے، میں کچھ نہیں کہہ رہا، شایان شرافت سے بولا، مبادا کہیں سچ میں ہی نہ چلی جائے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین اٹینشن پلیز، اب آ رہے ہیں مسٹر اینڈ مسز شہرام خانزادہ۔ مراد نے سب کو متوجہ کیا، لیکن ہم کیسے؟ یوشا جھجکی، آ جائیں کچھ نہیں ہوتا، شہرام نے ہاتھ بڑھایا تھا، یوشا نے اس کو دیکھنے کے بعد تھام لیا تھا۔ شہرام کا کاندھا ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آ رہا تھا، اس کو تو موقع مل گیا تھا یوشا کے قریب ہونے کا۔ یوشا کے کہنے پہ وہ صرف کپل ڈانس کے کچھ اسٹیپ کر رہے تھے۔ تو نظم نظم سا میرے ہونٹوں پہ ٹھہر جا، میں خواب خواب سا تیری آنکھوں میں جاگوں رے، تو عشق عشق سا میری روح میں آ کے بس جا، جس اور تیری شہنائی اس اور میں بھاگوں رے۔ شہرام نے یوشا کو کمر سے پکڑ کے گھمایا اور اس کی بیک اپنے سینے سے لگائی۔ یوشا نے کچھ ہی اسٹیپ کرنے کے بعد ڈانس ختم کر دیا، اس طرح سب کے سامنے اس کو عجیب فیل ہو رہا تھا۔ مہندی کا فنکشن رات کو کافی دیر سے ختم ہوا تھا، ہال سے جاتے ہی سب سونے چلے گئے تھے، صبح بارات تھی اور کام بھی کافی تھا۔ آج کے فنکشن کی سب سے زیادہ جس کو خوشی ہوئی تھی وہ شایان تھا، باقی سب بھی خوش تھے لیکن شایان تو ساتویں آسمان پہ تھا۔ سنو، مجھے اچھے لگتے ہیں یہ کنگن، یہ مہندی اور تم۔ سین چینج، روح سے محسوس کریں، لفظوں میں تمہارے ہو جائیں، یہ عشق کا موسم ہے، کہو تو آپ کے ہو جائیں۔ رات گزر گئی اور اگلا دن آ گیا۔ جب مرحا کو سب چھوڑ کے پیادیز جانا تھا، صبح سے وفقے سے مرحا رو رہی تھی۔ یوشا اور نینا بھی اپنی دوست کے جانے پہ اداس تھیں، لیکن خود کو کنٹرول کیے کام میں لگی ہوئی تھیں۔ گلابو جانی اٹھ جانا اب، پھر ہم نے پارلر بھی لے کے جانا ہے۔
یوشا نے پیار سے مرحا کو اٹھایا جو کافی دیر سے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ صبح سے ناشتہ بھی بس نام کا ہی کیا ہوا تھا۔ مرحا اٹھی تو آنکھیں ریڈ ہوئی پڑی تھی۔ یوشا کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے میری جان، کیوں اتنی اداس ہو رہی ہو؟ میں کیسے رہوں گی سب کے بغیر؟ مرحا کہتے ہوئے پھر سے رو پڑی۔ بس چپ کر جاؤ، یہ دن کبھی نہ کبھی تو آنا ہی تھا نا، تو اب آ گیا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ ہم اس شہر میں ہی ہیں، جب دل کرے بلا لینا یا خود آ جانا۔ یوشا نے کہتے اس کے آنسو صاف کیے۔ اگر اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے تو ہم منع کر دیتے ہیں شایان کو، وہ نہیں آئے گا بارات لے کے۔ نینا روم میں آتی ہوئی بولی۔ وہ باہر سے ان کی باتیں سن چکی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ مرحا جلدی سے بولی تو وہ دونوں ہنس پڑی تھی۔ دیکھ دیکھ، یہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے ہیں، ایسے کر رہی ہے ورنہ تو دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے اس کے۔ نینا نے اس کی جلدی سے بولنے پر چوٹ کی۔ مرحا شرما گئی۔ چلو اب اٹھو، آنٹی نے بولا ہے پارلر جانا ہے۔ تیار ہونے کے بعد وہ ہال میں آ گئی تھی۔ سارے مہمان آ چکے تھے، بس بارات کا انتظار تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈھول اور بینڈ کی آواز آنے لگی، مطلب بارات آ گئی تھی۔ یوشا اور نینا ویلکم کرنے کے لیے گئی تھیں۔ آف وائٹ شیروانی پہنے آج شایان بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بائیں ہاتھ میں واچ پہنی تھی، چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ کسی کو پا لینے کی خوشی اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آج شایان ہر لڑکی کا دل دھڑکا رہا تھا، لیکن اس کا اپنا دل صرف ایک لڑکی کی جھلک دیکھنے کو بے چین ہو رہا تھا، جو آج ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے والی تھی۔ ہال کے دروازے پہ نینا اور یوشے نے روک لیا۔ رک جائیے جیجا جی، اتنی جلدی بھی کیا ہے، پہلے نیک تو دے دیں۔ جی کس بات کا نیک دیں ہم؟ مراد بولا تھا۔ جی آپ چپ کر جائیں، ہم ان سے بات کر رہے ہیں جن کو لڑکی چاہیے، نینا ادا سے بولی تھی۔ کتنا نیک چاہیے آپ کو؟ شایان خوبصورت مسکراہٹ لیے بولا۔ واللہ بہت جلدی ہے آپ کو، یوشا بولی۔ جی ہم تو کب سے تیار ہیں، بس آپ کی طرف سے ہی دیر ہے۔ جواب شہرام کی طرف سے آیا تھا۔ بھائی آپ ان کو 1 روپیہ نہیں دیں گے، مراد بولا تھا۔ کیوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم اپنے جیجو سے بات کر رہے ہیں، نینا نے اسے گھورا تھا۔ مسئلہ تو دل کا ہے جناب، حل کریں گی؟ مراد دل پہ ہاتھ رکھ کے آنکھ دبا کے بولا۔ نینا سٹ پٹا گئی۔ یہ لے، کافی ہے یا اور بھی چاہیے؟ شایان نے نوٹ دیتے ہوئے بولا تھا۔ ابھی کے لیے ٹھیک ہے، پھر باقی کی رسمیں بھی تو ہے نا، آ جائیں، نینا بے نیازی سے بولی۔ بارات اندر آئی۔ شایان اسٹیج پہ بیٹھا تھا، مراد اور شہرام بھی ساتھ ہی تھے۔ ابھی بیٹھے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ نینا اور یوشا ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ لیے آ گئی تھی۔ یہ کیا ہے مس؟ مراد کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ یہ اسپیشل لوگوں کے لیے ہے، نینا مسکرا کے بولی تھی۔ جیسے کہ؟ مراد نے پوچھا۔ جیسے کہ آپ اور شہرام بھائی، نینا کی مسکراہٹ دیکھنے والی تھی۔ اتنی مہربانی دیکھ کر مراد کی آنکھیں نکل آئی تھی۔ جی یہ ہماری رسم ہے، دلہن کے دیور کو بہن اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلاتی ہے۔ نینا نے اپنی خود بنائی ہوئی رسم بتائی تھی۔ یوشا نے اپنے ہاتھ میں گلاب جامن اٹھایا اور شہرام کی طرف بڑھایا تھا۔ نینا نے بھی مراد کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ دونوں نے بڑی حیرانی سے پہلے دیکھا پھر کھا لیے، لیکن کھاتے ہی کانوں سے دھواں اور آنکھوں سے پانی آنے لگا کیونکہ گلاب جامن میں مرچی بہت تھی۔ نینا اور یوشے نے ہنستے ہوئے بڑی معصومیت سے پوچھا، کیا ہوا، خاطرداری اچھی نہیں لگی آپ کو؟ پانی پلیز، مراد بولا۔ شایان بھی ہنس رہا تھا ان دونوں کی حالت دیکھ کر، جبکہ شہرام خاموش کھڑا یوشے کو دیکھ رہا تھا۔ اسٹیج کے پاس کھڑے ویٹر کو بلایا جس کو وہ پہلے ہی کھڑا کر کے آئی تھی۔ یہ کون سی رسم تھی یوشا بہن؟ آپ کے گھر مہمانوں کی یہ خاطرداری ہوتی ہے؟ مراد صدمے سے بولا۔ یوشا نے کاندھے اچکا دیے اور شہرام کو پانی دیا۔ جیسے شہرام نے آرام سے تھام لیا۔ یوشا حیران تھی کہ شہرام نے کچھ کہا کیوں نہیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا مس نین، مراد نے وارننگ دی۔ اچھا کیا کر لیں گے آپ؟ نینا مسکرا کے بولی۔ میرا بھی وقت آئے گا، پھر میں بتاؤں گا کہ کیا کر سکتا ہوں، مراد نے دھمکی دی۔ دیکھی جائے گی، نینا کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اسٹیج سے یوشا واش روم گئی، ہاتھ مٹھائی سے چپچپا رہے تھے۔ یوشا جیسے ہی ہاتھ دھو کے پلٹی، سامنے شہرام کھڑا بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ لیڈیز واش روم ہے، یوشا یہاں وہاں دیکھتی ہوئی بولی۔ شکر ہے وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا، میں منہ میٹھا کرنے آیا ہوں، شہرام قدم آگے بڑھاتا ہوا بولا۔ یوشا پیچھے ہوئی لیکن پیچھے بیسن تھا۔ تو باہر جائے نا، مٹھائی وہاں رکھی ہے، یوشا خطرہ محسوس کر کے بولی تھی۔ شہرام نے ہاتھ پکڑ کے اس کو کھینچا اور کمر پہ پکڑ مضبوط کی۔ یوشا پھڑ پھڑا کے رہ گئی۔ چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی آ جائے گا۔ شہرام جواب دینے کی بجائے اس کی طرف جھکا اور اس کی سانسیں خود میں اتاری۔
यूशा की सांसें अटक गई थी। इसने शहराम के सीने पे हाथ मार के पीछे करना चाहा, लेकिन गिरफ्त और मजबूत हो गई। शहराम पीछे हटा तो यूशा लंबे लंबे सांस लेते हुए इसके सीने पर सर टिका गई। लिपस्टिक का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था। शहराम मुंह बनाता हुआ बेशर्मी से बोला। यूशा झटके से अलग हुई थी। शर्म तो बिल्कुल नहीं आती आपको? तो किसने कहा था आपको मेरा मुंह जलाने के लिए? मुझे अब कुछ तो चाहिए था ना? शहराम बेबाकी से बोला था। यूशा का चेहरा खून छलकाने लगा था। आप तो अभी से लाल हो गई हैं। शादी की रात क्या होगा? शहराम ने तो आज शन बेच ही दी थी। यूशा तो इसको साइड पे धक्का देती हुई वहां से भाग गई। पीछे शहराम का कहका गूंजा था। यूशा भागती हुई ब्राइडल रूम में आई थी। क्या हुआ? नैना ने इसको देखा था। कुछ नहीं। यूशा अपना चेहरा ठीक करती हुई बोली थी। और ये तुम्हारी लिपस्टिक को क्या हुआ है? नैना होठों की तरफ इशारा करती हुई बोली, जहां लिपस्टिक फैली हुई थी। नहीं, कुछ नहीं, मैं अभी आती हूँ। यूशा कहती हुई ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई थी। नैना ने कांधे उचका दिए। अल्लाह पूछे आपको शहराम शर्मिंदा करवा दिया है। यूशा अपनी हालत ठीक करती हुई बोली थी। शान स्टेज पर बैठा बेसब्री से यहाँ वहां देख रहा था। अभी तक मरहा नहीं आई थी। भाई सब्र कर ले, आपके पास ही आना है भाभी ने। मुराद ने इसकी बेचैनी देख के बोला था। शान ने महज सर हिलाया। अचानक हॉल की लाइट्स ऑफ हो गई और एक स्पॉट लाइट ऑन हुई। स्पॉट लाइट की रोशनी में मरहा अपने वालिदैन के संग चली आ रही थी। मेहरून लहंगा पहनी, हैवी ज्वेलरी, साथ ब्यूटिशियन के किए गए मेकअप में मरहा इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। हमेशा से सिंपल रहने वाली मरहा आज कोई अप्सरा ही लग रही थी। शान उठ खड़ा हुआ। नजरें हटने से इनकारी थी। हमेशा से हिजाब करने वाली मरहा आज भी हिजाब में थी। शायान सरशार हो गया था। स्टेज के पास पहुंच के नैना और यूशे ने मरहा के दोनों हाथ थाम लिए। शायान ने हाथ आगे किया। यूशे ने पहले मरहा का हाथ आगे किया। शायान पकड़ने लगा तो यूशा ने फिर से पीछे कर लिया। शायान कंफ्यूज नजरों से इन दोनों को देखने लगा। पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें, नैना मुस्कुरा के बोली। ऐसी बात है, शायान ने कहते हाथ की जगह कलाई पकड़ ली। ये चीटिंग है, नैना जोर से बोली। शायान ने कांधे उचका के मरहा को ऊपर आने में मदद दी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। शायान ने बैठते ही सरगोशी की। मरहा ने सर हिला दिया। बैठने के बाद सलामी की रस्म शुरू हुई। इसके खत्म होने के बाद नैना और यूशा दूध पिलाई की रस्म के लिए आईं। मरहा की बहनों को कहा था, लेकिन वो अपने बच्चों में बिजी थी और वो इतनी बहस नहीं कर सकती थी। ट्रे में एक बड़ा ग्लास था और एक छोटा सा फीडर था। दोनों पे पैसों का टैग लगा हुआ था। देख लें, जितनी आपकी हैसियत है वो ले लीजिए। यूशा ट्रे सामने करती हुई बोली थी। ये एक गिलास 50,000 का और ये छोटा सा फीडर 30,000 का। इतना महंगा दूध? मुराद की आंखें बाहर आ गई थी। जी, नैना बोली थी। और अगर हम ना ले तो? शायान बोला था। लेना तो पड़ेगा, यूशा बोली। लेकिन मेरे पास तो इतना कैश नहीं है। शायान मुस्कुरा के बोला था। कोई बात नहीं, हम चेक भी ले लेते हैं। नैना भी मुस्कुराई थी। नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है, हम घर जाके दूध पिलवा देंगे आपको। मुराद जल्दी से बोला। कहीं शायान सच में ही चेक न दे दे। तुम्हारा टांग अड़ाना जरूरी है? नैना ने इसको तेज नजरों से घूरा था। मैं टांग कहाँ अड़ा रहा हूँ, मैं तो पूरा ही अड़ रहा हूँ। मुराद मजे से बोला था। नैना ने सर झटका था। यार शहराम भाई, आप मिस यूशा को पैसे नहीं देते क्या, ये जो मांग रही हैं? मुराद चढ़ाते हुए बोला था। आप होंगे मांगने वाले। यूशा नाक चढ़ा के बोली। बच्चों, बस करो बहस। शायान, आप पैसे दे दें, रुखसती का टाइम हो रहा है। फारूक साहब ने वक्त का एहसास करवाया, वरना इन्होंने तो पूरी रात बहस में ही गुजार देनी थी। आखिर शायान को 50,000 देना पड़ा था। इस सारे मामले में मरहा खामोश सर झुकाए बैठी रही थी। रुखसती हुई तो मरहा रोती और बाकी सबको भी रुलाती शायान के संग चली गई थी। शायान के घर मरहा का बहुत ही पुरतपाक वेलकम किया गया था। नैना और यूशे यहाँ भी इनवाइटेड थी। मरहा को हॉल में बैठा के कुछ रस्में की गई, फिर इसको शायान के रूम में पहुंचा दिया गया। सबसे फ्री होके शायान रूम की तरफ गया तो सामने ही नैना और यूशा खड़ी मुस्कुरा रही थी। आप दोनों फिर यहाँ आ गई? शायान बोला। मुराद अपने पापा के साथ किसी काम के लिए चला गया था, वरना वो खुद ही डील करता इनको। आप हमें क्या समझते हैं? नैना बोली थी। मतलब? शायान ना समझी से बोला था। मतलब मेरे पापा आपके पापा के फ्रेंड हैं और ये मेरी फ्रेंड है, तो इस हिसाब से आप हमारे भाई हुए ना। नैना ने रिश्ता बताया था। शायान को समझ तो ना आई, लेकिन फिर भी सर हाँ में हिला दिया। फिर हम यहाँ आपकी बहनें बन के खड़ी हैं। आपने अंदर जाना है तो हमें कुछ देना पड़ेगा। अब यूशा बोली थी। लेकिन मैंने नेक तो दे दिया था। शायान को समझ ना आया अब किस बात का नेक दे।
वो तो आपने अपनी सालियों को दिया था, अब अपनी बहनों को देना है। नैना ने इसको समझाया था। अब बस यही बचा है। शयान की पॉकेट में जितने थे दे दिए। चले, क्या याद करेंगे, आज बख्श दिया है आपको, नैना ने हंसते हुए कहा और वहां से चली गई। मरहा रूम में बैठी काफी घबराई हुई थी। शयान का रूम ब्लैक और ग्रे था। रूम में फूलों और मोमबत्तियों से खौफनाक माहौल बना हुआ था। काफी देर से शयान का वेट कर रही थी लेकिन शयान नहीं आया था। फिर उठ के चेंज करने की गज से ड्रेसिंग की तरफ बढ़ी। अभी ज्वेलरी उतारने ही लगी थी कि रूम का दरवाजा खुला और शयान अंदर आया। वो जो ये सोच रहा था कि मरहा बैठी हुई इसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन वो तो चेंज करने जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम, भारी आवाज में सलाम किया। मरहा सर हिला के अपने काम में मसरूफ रही। मतलब साफ था कि वो नाराज है। शान समझ गया था। अभी तो मैंने देखा भी नहीं और तुम चेंज कर रही हो। शान ने इसका हाथ पकड़ के रोका। आप तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, फिर ये सब। मरहा ने शिकवा किना नजरों से इसे देखा था। वो तो और मसला था। शान मुस्कुराया। मरहा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़े, छोड़े मुझे। मैं अभी भूली नहीं हूं इस दिन आपने मुझसे कितनी बुरी तरह से बात की थी। आपने गुस्सा भी बहुत किया था। मैंने आपको कुछ कहा था क्या? नहीं ना, लेकिन आपने। शयान ने इसके तमाम अल्फाज गुस्सा, नाराजगी और शिकवे लबों से चुन लिए। मरहा ने शयान का कांधा पकड़ा तो शयान ने कमर से पकड़ के सहारा दिया, वरना वो तो लुढ़क कर गिर जाती। मरहा को तो समझ नहीं आया था कि ये क्या हुआ है। शयान पीछे हुआ तो मरहा लंबे लंबे सांस लेने लगी। बहुत बोलती हो मिसेस। शयान मुस्कुराया था। मरहा गुलाबी गालों के साथ खुद भी गुलाब का फूल लग रही थी। मरहा की हालत ठीक हुई तो अपनी खफत मिटाने को बोली, मेरी मुंह दिखाई। क्या? शयान को समझ न आई थी। मेरी मुंह दिखाई दे, मरहा चबा के बोली। वो तो शयान को अपना गुनाह नजर आया था। आप मेरी मुंह दिखाई नहीं लाए? अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, शराफत से सोफे पे चले जाएं। मरहा सदमे से फिर गुस्से से बोली, लेकिन मेरी बात तो सुनो यार। शायान इसका हाथ पकड़ के बोला था। बोले, मरहा ने एहसान किया था। शायान ने रिश्ते से लेके अब तक की सारी बात बताई और अपनी बेचैनी, अपना प्यार, सब कुछ बताया। आगे से मरहा ने ऐसी नजरों से देखा कि शायान बेचारा शर्मिंदा हो गया। मतलब हद है, आप किस दुनिया में रहते हैं? माना कि आपकी शादी मुझसे हो रही थी, लेकिन आपने तस्वीर देखी तक नहीं। मतलब आप किसी ऐसी लड़की से शादी कर लेते जिसका नाम भी नहीं पता था आपको। हद है शायान, अगर आपकी शादी मुझसे ना होती तो किसी और से कर लेते। मरहा सदमे में थी। मैं बात करने वाला था इस दिन मोम से, लेकिन तुम बता के चली गई थी कि तुम्हारी शादी हो रही है, फिर मैं क्या करता? शायान बोला था। मरहा ने सर हिलाया। I am not perfect. I'll annoy you, make fun of you, say stupid things, but you will never find someone else who love you as much as I do. Welcome to my life. The best day of my life is today when I married to you. The best thing in my life is you. I can't live a single day without you. I want to say that I love you from the core of my heart. You are the only one I want to live with you forever and ever. शयान ने इसका हाथ थामकर कहा। मरहा सर झुका गई। क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? शयान इसको नर्म निगाहों से देखता हुआ बोला। मरहा ना में सर हिलाती हुई इसके सीने से लग गई। शयान ने हंसते हुए इसके गिर्द हिसार बांधा और लाइट ऑफ कर दी। मिले जो मुझे कुछ लेने की इजाजत, जिंदगी भर के लिए मेरा जवाब होगा सिर्फ तुम, हर बार तुम, आखिरी सांस तक तुम। सीन चेंज। नहीं मालूम कब से है ताल्लुक तुमसे, तुम्हारा इश्क था दिल में तुम्हारे नाम से पहले। सुबह शयान की आंख खुली तो मरहा बेड पे नहीं थी। शयान रात का मंजर सोच के मुस्कुराया। इतनी देर में मरहा वॉशरूम का दरवाजा खोल के बाहर आई और ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर बाल सुलझाने लगी। शयान को मुकम्मल इग्नोर किया। क्या हुआ मिसेस? शादी की पहली सुबह ही मूड खराब? शयान कहता हुआ उठ के आया था और मरहा के सामने ड्रेसिंग से टेक लगा के खड़ा हो गया। आपने मुझे मुंह दिखाई नहीं दी, अब मैं अपनी दोस्तों को क्या कहूंगी कि आप भूल गए? मरहा मुंह फुला के बोली थी। शयान गुलाबी फूले हुए गाल देखकर मुस्कुराया। तुम कुछ न कहना, मैं खुद जवाब दे दूंगा। शयान प्यार से इसका गाल सहलाता हुआ बोला। आप फ्रेश हो जाएं, सब वेट कर रहे होंगे। मरहा नजरें झुका के बोली। शयान सर हिलाता हुआ फ्रेश होने चला गया। मरहा और शयान नीचे आए तो सब लोग आए हुए थे। मरहा के घर वाले भी नाश्ता लेके आए थे। योशा और नैना भी आई थी। मरहा को देखकर जल्दी से उठ के गले मिली थी। कैसी हो? दोनों ने एक साथ पूछा था। मैं ठीक हूँ, तुम दोनों कैसी हो?
मरहा ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक ही रात पे ऐसा लग रहा था जैसे साल गुजर गए हों। सब ने साथ ही नाश्ता किया, फिर बड़े तो सब अपने काम में लग गए। लेडीज हॉल में बैठी गपशप कर रही थीं। यूशा और नैना मरहा के साथ इसके रूम में थीं। तुम खुश हो? यूशा ने मरहा का चेहरा देखते हुए पूछा था। मरहा ने मुस्कुरा के इस्बात में सर हिलाया। तुम्हें इसके चेहरे को देखकर पता नहीं चल रहा है ये कितनी खुश है? देख कैसे खिला हुआ गुलाब लग रही है। नैना इसको देखकर बोली, जो गुलाबी और सफेद रंग के फ्रॉक में मलबूस थी। चेहरे का रंग फ्रॉक के रंग से मिल रहा था। अल्लाह हमेशा तुम्हें खुश रखे मेरी जान। यूशा मुस्कुरा के बोली थी, आमीन। वैसे मुंह दिखाई में क्या मिला? नैना ने पूछा। मरहा कोई जवाब देती इससे पहले शयान रूम में आया था। अभी कुछ नहीं दिया। क्यों? नैना और यूशा हैरान हुई। रात को हम बहुत बिजी हो गए थे, इसीलिए देना भूल गया। शान मरहा को गहरी नजरों से देखता मानी खेजी से बोला था। मरहा तो इसकी बात पे शर्म से पानी पानी हो गई। अगर इसको पता होता कि वो ऐसा जवाब देने वाला है तो कभी न कहती। नैना को खांसी का दौरा पड़ गया था। अच्छा, हम चलते हैं। यूशा नैना का हाथ पकड़कर बाहर चली गई। शयान की और मानी खेज बातें नहीं सुन सकती थी। शायान, ये क्या बोला है आपने इनको? और वो मुझे कितना तंग करेंगी? मरहा सुर्ख चेहरा लिए बोली। क्या गलत बोला है? वो जब से आई हैं तुम पर कब्जा किए बैठी हैं। नीचे भी तुम्हारे साथ थी, यहाँ भी आ गई। अब इनको भगाने के लिए कुछ तो करना था ना? शायान ने कहते ही इसको अपने हिसार में लिया। भूलिए मत, आपसे पहले इनका हक है मुझ पे। मरहा जता के बोली, ऐसी की तैसी इनके हक की, मुझे अपना हक लेना आता है। शयान ने कहते हुए इसे बाहों में उठाया था। शयान, मरहा ने कुछ कहना चाहा। शयान ने इसके होठों पे उंगली रखी और झुकता चला गया। सीन चेंज। ब्यूटिशियन मरहा को तैयार करने घर ही आ गई थी। शयान ने इसके सर पर खड़े होकर मरहा को तैयार करवाया था। मरहा की घूरियों को इग्नोर करते हुए शयान ने अपनी ही की थी। टी पिंक कलर की टेल मैक्सी में डायमंड की ज्वेलरी पहने ब्यूटिशियन के मेकअप में सर पे इसी कलर का हिजाब लिए मरहा आज भी शान पर बिजलियां गिरा रही थी। शान भी ब्लैक थ्री पीस में बाल एक तरफ सेट किए, जेल से सेट किए, चेहरे पे मुस्कुराहट लिए बहुत हैंडसम लग रहा था। तैयार होने से पहले शयान ने मरहा को बहुत ही खूबसूरत लॉकेट गिफ्ट किया था, जिस पे एस लिखा हुआ था और इसमें छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे। गिफ्ट देते हुए बोला, मैं चाहता हूँ तुम इसको हर वक्त पहने रखो। इस पे लिखा एस हमेशा तुम्हारे दिल के करीब रहे और तुम्हारी धड़कन सुने। हॉल में एंट्री हुई तो सबकी नजरें इस खूबसूरत जोड़े पर थीं, जो एक दूसरे के साथ मुकम्मल था। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इनकी खुशियों की दुआ मांगी और कुछ लोगों ने हसद की निगाह से देखा। यूशा और नैना भी स्टेज पे मरहा के पास बैठी थी। शान कुछ देर इनके साथ ही बैठकर फिर गायब हो गया था। अचानक हॉल की लाइट्स बंद हो गई थी और एक स्पॉटलाइट जली, जिसकी रोशनी में शयान खड़ा नजर आ रहा था। दूसरी स्पॉटलाइट मरहा पर पड़ी। शयान चलता हुआ इसके पास आया और डांस के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे मरहा ने कुछ तौक़ुफ़ के बाद थाम लिया। शान ने एक हाथ में मरहा का हाथ थामा और दूसरा इसकी वेस्ट पर रखा था। मरहा का एक हाथ शान के कांधे पे था। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। शान ने आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू किया था। शान ने मरहा को घुमाया और इसकी बैक अपने सीने से लगाई थी। शान ने मरहा को घुमा के नीचे किया और खुद भी झुका, फिर उठाते ही दोबारा घुमा के हाथ से पकड़ के उठा लिया, ऐसे कि मरहा की पीठ शान के सीने से लगी हुई थी। शान तो डांस ऐसे कर रहा था जैसे रोज प्रैक्टिस करता हो। मरहा तो सिर्फ इसके रहमो करम पर थी। एंड में शान ने फिर मरहा को घुमा के अपने बाजू पे डाला था। डांस खत्म हुआ तो सबने हूटिंग की और तालियां बजाई। So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. Khuda Hafiz.